So in the last lecture, I gave you 4 points. You have to search these points. This is S to M2. So what is the deepest point on Earth? Mariana Trench. It is Mariana Trench. What is Mariana Trench? It is the deepest point in the oceanic crust. Okay, ocean होता है ना, ocean, the crust of ocean. This is the Mariana Trench. And deepest hole. What is deepest hole? Deepest hole. Kola Peninsula. In Russia, na? Just a minute. Kola Peninsula. Okay. In Russia, na? In Russia. Yeah. What is the depth? Depth कितनी है? Depth is 7 kilometers. 7 kilometers. Okay. Crust layer thickness, width of Earth? 5 to 77 kilometers. Kilometer. How much? 5 to 70 kilometers. 5 to 70 5 to 70 only. kilometers. Kilometer plus 5 to 70 kilometer. 5 to 7 or it is around 100 kilometer thickness. Roughly. Okay. 5 to 7 it average the deepest point where you can go, like suppose if you are standing on a mountain, then it may be up to 100 kilometer. Okay, so you can take it like it is 100 kilometer in thickness. And radius of Earth, 6,731 kilometers. it is around 6,400 kilometers. Okay. Okay. Chalo. Now we will start the physical world. We have already covered the definition of physics. In physical world, what we will study? Physical world, we will study the following topics. There might be some disturbance because it's raining here. First one will be fundamental. Second is conservative laws. Sir, which page number are you talking about? Which page number are you talking about? This is not as per the package. ये अलग चलेगा, है ना? Copy paste नहीं होगा बिल्कुल. ठीक है? Okay. बेटा, whenever you have any doubt, then in that case unmute yourself. Other than that, you can make your mic mute, है ना? Because there is so much Okay, noise, sir. है ना? पता नहीं चलता हमारे बैकग्राउंड में नॉइज आता रहता है. Okay, sir. Conservative laws. अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, then you can surely unmute yourself. First one is fundamental force. Fundamental forces. सर आप आकाश के स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं बेटा, लेकिन पूरा मटेरियल कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं. ठीक है? ओके सर. ठीक है, फिर फायदा क्या रहेगा, है ना? यस सर. फिर स्टडी मटेरियल से ही अगर आदमी पढ़ेगा तो स्टडी मटेरियल तो है ही, है ना? यस सर. तो सर फिर ये जो आप स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ा रहे हो उसको हम नोट डाउन कर ले. बेटा ये प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, है ना? इट इज जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास. ऑफलाइन क्लास में बोर्ड में अगर लिखते थे तो नोट करते थे ना? हाँ सर. बिल्कुल ऐसे नोट करना है. ठीक है? ये सारे टॉपिक आपके हर एक मटेरियल, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लो, इट विल बी सेम. ठीक है? थ्योरी पार्ट विल बी सेम. फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फोर्सेस, सेकंड इज कंजर्वेटिव लॉस. कुछ चीजें होंगी थोड़ी सी डिफर कर सकती हैं. ठीक है? तो यहाँ पे इट विल कवर, है ना? इट विल एंड फिजिकल वर्ड. मैं आपको दिखा देता हूँ.
So note down the sequence. हो गया? ओके बेटा हो गया, नोट हो गया? Yes, sir. We take the sun. तो सन के अबाउट जिस तरीके से प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इन द सेम वे इन अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, बिल्कुल सेम है. दिस इज अ बिगर वर्जन and this is smaller. Okay, so this is about macrophysics and this is about microphysics. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? But both will have the similar property. This is the beauty of subject. इस सब्जेक्ट की यही ब्यूटी है कि यूनिवर्स में the big system and the smallest one system will be having the same property. दे आर सिंक्रोनाइज, वो बिल्कुल एक जैसे की तरह काम करेंगे. समझे कि नहीं? इसीलिए मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, अगर इंटरेस्ट लोगे तो. अगर इसको वैसे पढ़ोगे, आज पढ़ लेते हैं, किसी तरीके से निपटा लेते हैं ना, तो फिर ये बोरिंग बन जाएगा, है ना? समझे? इसलिए हमारा फिजिक्स विल नॉट बी लाइक बुकिश लैंग्वेज की तरह नहीं रहेगा कि पूरा बुक पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. फील भी आना चाहिए, है ना? क्लियर है? चलो, तो वीडियो समझ में आया जो मैंने दिखाया? चलो, काफी अच्छा वीडियो है वो, है ना? उससे एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है कि हाँ यूनिवर्स इस तरीके से है. चलो अब स्टार्ट करें अपना काम. स्टार्ट करें. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फोर्सेस. Any idea about fundamental forces? What are the fundamental forces? कोई भी? Any of you? गलत सलत कुछ भी बताओ. Gravitational. Fundamental forces are those forces which are only responsible for the existence of universe. ठीक है? These are those forces which are fundamental or unique and responsible for creation of universe and other forces. Other forces को क्या बोलेंगे? They will be called derived forces. Why we call them derived forces? Because these are not fundamental. Like suppose if you're talking about friction force, so it is not fundamental force. Following are the only fundamental forces. First one is gravitational force. Second one is Weak nuclear force. Weak nuclear force. No. Second is electromagnetic force. And the third one is nuclear force. In your package it has been divided into two parts, weak and strong, but basically it is the only nuclear force. We can call it weak nuclear force, Strong nuclear force. And second one is strong nuclear force. But Strong it is a nuclear force. Strong nuclear force. But basically it belongs to the nuclear force. So these forces are not related to each other. These are the only three fundamental forces. All the forces will be derived from these forces. These are basically, we call them fundamental forces. Because of these forces, the universe is created and it has been established properly with the stability. तो इसके अलावा कोई भी forces will be called derived forces. ठीक है? Even electromagnetic force has two components. One is electric force, and second is
magnetic force. We will cover each forces one by one. Magnetic force. Okay. Gravitational force has no component. It's a simple force. This is the force of attraction. One by one we will take the force. समझ में आया? The first force is gravitational force, second is electromagnetic, and third one is nuclear force. ठीक है? Clear है? Is it clear? Yes, sir. Note it down. Screen visible? First one is gravitational force. First one is gravitational force. So what is gravitational force? You must have studied this force in your 9th class. 9th class में पढ़ा हुआ इसको. What is gravitational So force? gravitational forces which acts between the masses in the universe. किसने इसको डिस्कवर किया था? Who discovered the gravitational force? Isaac Newton. Newton. Isaac Newton. Isaac Newton, sir. Isaac Newton. So Newton gave the theory and law of gravitation. अच्छा, अब याद कर लो, समझ लो, what is law? In physics, law is given by its inventor. जो भी उसका इन्वेंटर था वो लॉ देता है. सपोज न्यूटन गेव अ लॉ, तो यू कांट चैलेंज अ लॉ. ठीक है? जैसे न्यूटन ने बोल लिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है लाइक F = G m1 m2 by r². So you can't challenge that law that it is not correct. ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता है when it is verified, है ना? When in science community जब वो लॉ वेरीफाई हो जाता है, when it suits with the formula, वैल्यू रखने के बाद वो सही रिजल्ट देता है, तभी उसको लॉ माना जाता है. ठीक है? तो कभी भी ये नहीं पूछना कि सर ये लॉ कैसे आया. फिर से मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में जैसे आपका ये बताओ, लॉ का मतलब क्या है? अगर आप रोड पे गए, ट्रैफिक में चालान कट गया, तो क्या कभी आप ये बोलते हो कि नहीं ये लॉ गलत है? कभी बोलते हो? नहीं बोलते हो ना. या तो उसको 100 रुपए पकड़ा के भागने की कोशिश करते हो, या आपका चालान कटेगा, है ना? या जो भी होगा, फीसिस जो भी होगी, पेनल्टी होगी, वो कटेगी. लेकिन आप कभी ये तो नहीं बोलते हो ना कि नहीं दिस लॉ इज इनकरेक्ट. नहीं बोलते हैं ना. इस तरीके से वट एवर द लॉ वी विल टेक इन द फिजिक्स, जो भी आएंगे हमारे, उसको आपको ये नहीं बोलना है कि ये लॉ गलत है, ये सर इसको प्रूव करके बताइए. तो बेसिकली इन फिजिक्स यू कांट प्रूव अ लॉ. लॉ को प्रूव नहीं कर सकते, यू कैन ओनली वेरीफाई द लॉ. समझ में आया कि नहीं? तो इसको कहीं पे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ कांट बी प्रूव्ड, it can only be verified. It can only be verified. ठीक है? फिजिक्स में यू कांट प्रूव द लॉ. ठीक है? इट कैन ओनली बी वेरीफाइड कि हाँ ये सही है, फोर्स सही आ रहा है वैल्यू रखने के बाद. ठीक है? तो न्यूटन ने क्या किया था? क्या न्यूटन से पहले देयर वाज क्या ग्रेविटेशन होता ही नहीं था? न्यूटन से पहले न्यूटन किस यूनिवर्सिटी से थे? कोई आइडिया? सर आपने क्या पूछा? किस यूनिवर्सिटी से न्यूटन ने अपना पढ़ाई किया था? विच यूनिवर्सिटी? एनी आइडिया? नो आइडिया. कैम्ब्रिज से थे. तो अगर हम वहां पे जाएं और देखें तो ऐसा नहीं है कि बिफोर न्यूटन देयर वाजंट एनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. था, साइंटिस्ट कई सारे लोगों ने ट्राई किया था, दे ट्राइड अबाउट द ग्रेविटेशन, लेकिन न्यूटन वाज द ओनली वन हु गेव द फॉर्मूला कि इस तरीके से फोर्स लगता है बिटवीन द मासेस. सो बेसिकली उन्होंने पूरा डिटेल में थ्योरी दी दैट व्हाट इज ग्रेविटेशन लॉ. लॉ इज masses always attract each other. क्या करते हैं? सर न्यूटन के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स. एग्जैक्ट इतना नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने देखो उसको प्रॉपर ऐसे नहीं बोल रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन हाँ ग्रेविटी के बारे में उन्होंने काफी कुछ थ्योरी दिया था, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं था, कुछ गलत था, है ना? काफी कुछ गलत थ्योरी था, बट दे वर ऑन द ट्रैक. उस ट्रैक पे थे वो. तो सर बस न्यूटन ने मतलब फॉर्मूला दिया क्या? न्यूटन गेव द कंप्लीट थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, कंप्लीट थ्योरी.
अच्छा समझ रहे हो, ही गिव द कंप्लीट थ्योरी। उससे पहले कई सारी चीजें थी, जैसे केपलर वाज देयर, केपलर ने बताया था कि हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, बहुत साल पहले। देखो बेटा, आज जो आप साइंस पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना, आज जो आप साइंस पढ़ रहे हो उसके पीछे कई सारे साइंटिस्ट की जान गई हुई है, समझ रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ, अभी आप इतने छोटे होने में आपको एग्जैक्टली थ्योरी कहानी बताता हूँ। पहले क्या होता था, चर्च वॉज देयर, पता है ना, अगर मूवी देखोगे पता चलेगा थोड़ा थोड़ा। चर्च क्या करता था, साइंस को बढ़ने से रोकता था, क्योंकि साइंस इज द ओनली सब्जेक्ट, फिजिक्स खासकर, फिजिक्स में मतलब कि कोई भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट होगा, साइंस केमिस्ट्री हो गया है ना, कोई भी हो गया, साइंस में आप हमेशा कॉज ढूंढते हो, व्हाट इज द कॉज, ठीक है। और रिलीजन में जो होता है, रिलीजन में कभी भी क्यों नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि हाँ बस बोला गया मान लो उसको, लेकिन साइंस कहता था ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट, है ना। क्योंकि पहले क्या था, आप ये समझो, पहले जब अर्थ, देखो हम अर्थ पे अगर बचपन से देखें तो हमें क्या लगेगा, एक चीज याद रखना, हमेशा हमें अपनी चीज हमेशा सही लगेगी, ठीक है, जो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, वॉट एवर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव, ठीक है, वी विल ऑलवेज से कि हमारी फ्रेम ही सही है, हमारा जो नजरिया है वही सही है, ठीक है, हमको हमेशा अपनी बातें सही लगती है। तो हुआ क्या था, पहले लोगों को लगता था कि अर्थ पे हम लोग रहते हैं, तो सभी सोचते थे गॉडेस अर्थ एंड द होल यूनिवर्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये थ्योरी सुनी होगी कभी, सुना है। पहले ये मानते थे द होल यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कई साइंटिस्ट ने इसको बोला कि नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन द सेम वे सो मेनी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इन्होंने ये बोला, उसके ऊपर लोगों ने बोल दिया कि ही इज चैलेंजिंग अबाउट द गॉडेस अर्थ, ऐसे बोल रहा है, हमारे रिलीजन की बोल रहा है, तो सीधे साइंटिस्ट को उड़ा दिया गया ना, पब्लिक एग्जीक्यूशन हो जाते थे, कहीं उनको गायब कर देते या उनको पनिशमेंट किसी भी फॉर्म में देना होता दे देते। तो धीरे धीरे बड़ी मेहनत से, है ना, बहुत कुर्बानियों के साथ ये फिजिक्स और ये साइंस जो है बनी है, जो आज हम लोग इतने आराम से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। मतलब अभी तो पढ़ने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आराम से पढ़ रहे हो। पहले तो सोचो साइंस के बारे में, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी रिसर्च वर्क, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो, आप रिसर्च नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस उसकी परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि रिसर्च भी इतना होना चाहिए जो लोगों के रिलीजन या सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो पहले इनिशियली देयर वर सो मेनी साइंटिस्ट, वहां पे साइंटिस्ट थे हु गेव द थ्योरी अबाउट द प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने दिया था थ्योरी कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और भी बहुत सारा उसमें थ्योरी था। तो इन लोगों को काफी पनिशमेंट दिया जाता था कि यू कांट से अबाउट द अर्थ के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। तो ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दिया था ग्रेविटेशन के बारे में, एग्जैक्टली नहीं दे पाए थे, बट न्यूटन वाज द फर्स्ट वन हु गिव द कंप्लीट थ्योरी। उन्होंने कंप्लीट थ्योरी दिया था, ठीक है, कि मासेस हाउ द फोर्स एक्ट्स, है ना, और मतलब किस वजह से होता है, बड़े ऑब्जेक्ट में कैसे लगेगा, छोटे ऑब्जेक्ट में कैसे लगेगा। तो ही गिव द कंप्लीट थ्योरी। इसीलिए न्यूटन इज द ओनली वन जो फिजिक्स स्टार्ट करते सबसे पहले आप इन्हीं को पढ़ोगे, समझ रहे हो। ही इज अ साइंटिस्ट जो आज के 100 साल बाद भी, इफ यू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन का नाम आप पहले पढ़ोगे, है ना। क्लियर है कि नहीं। तो फिजिक्स को बड़े मजे से पढ़ो, एंजॉय करो, इसमें कुछ करना नहीं होता। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, आपके ब्रेन को फिजिक्स पहले से आती है, बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। साइकिल चलाते हो, स्कूटी चला लेते हो, कोई स्कूटी टू व्हीलर चला लेते हो? यस। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, व्हेन यू राइड टू व्हीलर, कभी कभी ओवरटेक करना होता है ना। वैसे तो ओवरटेक ज्यादा मत करना, लेकिन ओवरटेक करते टाइम एक जजमेंट करते ना कि वेदर वी विल क्रॉस द व्हीकल, सामने वाले के आने से पहले जज करते कि नहीं करते। तो यहाँ पे देखो, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग सम ऑब्जेक्ट, सपोज अ कार है, उसको आप ओवरटेक कर रहे हो स्कूटी से या कार से, किसी और कार से, और सामने एक और कार आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक और कार आ रही है। सो वेदर यू शुड ओवरटेक और ब्रेक मार के पीछे आना, ये कौन चेक करेगा? ये आपका दिमाग ही बताएगा ना, हाँ या ना, है कि नहीं। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, और वो जज करता है कि इतनी देर में इसको क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर रिलेटिव मोशन का कैलकुलेशन द ब्रेन डू, है ना, ब्रेन करता है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे करेगा, ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये फिजिक्स आपको पहले से आती है। सपोज अगर आपको अपने फ्रेंड को कुछ फेंक के मारना है, वो ऊपर कहीं किसी बिल्डिंग में बैठा है, या उसको कुछ पहुंचाना है,
तो यू विल थ्रो अ बॉल, बॉल को थ्रो करोगे ना, हाँ या ना, हाँ कि नहीं, करेंगे ना किसी एंगल पे, तो एक आइडिया लेते हैं ना लगभग किस एंगल पे वी थ्रू द बॉल तो ये रीच कर जाए इसको, करते कि नहीं करते? दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रॉपर जजमेंट करता है ब्रेन की दिस विल बी द रेंज, एंगल इतना होना चाहिए तो बॉल इतना रीच कर जाएगी। तो हमारे दिमाग में फिजिक्स पहले से ही, ठीक है, हमें बस यहाँ पे उसे समझना है। क्लियर है? हम ऐसी एक भी नई चीज यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे थ्रू आउट योर 2 ईयर प्रिपरेशन जो आपने कभी देखी ना हो, समझ गए? वो आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी, बस यहाँ पे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी वी विल स्टडी। क्लियर है? समझ गए? हाँ चलो यस सर। तो स्लाइड तो भर गई है, स्लाइड में ये नोट कर लो, न्यूटन गिव द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये नोट कर लो, मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, देन ये बॉक्स वाला नोट कर लो, ठीक है। बाकी प्रोजेक्टाइल और ये तो समझने के लिए है, नोट करना चाहो नोट कर लो, कोई खराबी नहीं है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इसके बाद, ठीक है। कंप्लीट ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। नाउ इन ग्रेविटेशन न्यूटन ने पूरा बताया था, ही गिव द थ्योरी। कहानी तो है ना पूरी अच्छे से कि न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था, है ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है ना। तो स्टोरी क्या है कि न्यूटन लेटे हुए थे, उनके ऊपर क्या गिरा था, एप्पल या पाइनएप्पल? एप्पल एप्पल गिरा था, ओके एप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल होता तो बात अलग होती है ना, अभी पढ़ना ही नहीं होता ना, ठीक है। चलो एप्पल गिरा तो ठीक है, उन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया था। एक्चुअल में क्या था, न्यूटन या अदर साइंटिस्ट, इनके लिए द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाज नॉट द रिसर्च हो जाता है, लेकिन अपने रिसर्च को एक्सप्रेस करना, समझाना इन इजी लैंग्वेज, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो न्यूटन हमेशा उसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाते थे, ठीक है। इवन हर साइंटिस्ट जो होगा, कोई भी साइंटिस्ट हो, इवन न्यूटन, आइंस्टीन, दे ट्राई टू प्रेजेंट देयर थ्योरी इन द मोस्ट सिंपलर वे, है ना, इससे क्योंकि लोगों को समझ भी तो आना चाहिए। आपने रिसर्च, कई ऐसी रिसर्च हैं जो लोगों ने कर रखी साइंटिस्ट ने, लेकिन वो समझ नहीं सकते लोग आज की डेट में, तो उनको माना गया स्क्रैप मान लिया जाता है, स्क्रैप, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा क्या करके रखा है, ठीक है। ऐसे रामानुजम की कई सारी है ऐसी रिसर्च। खैर, तो न्यूटन के ऊपर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने बोला कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, भाई बचपन से हमारा ये आदत हुई है कि चीज नीचे ही गिरेगी ना, लेकिन नीचे क्यों जा रही। तो इन्होंने इसको इस तरीके से नहीं देखा, इन्होंने देखा कि द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हम नॉर्थ पोल पे होंगे तो ऐसा दिखेगा, साउथ पोल पे द ऑब्जेक्ट विल बी कमिंग टू द सरफेस, दैट मीन, और यहाँ पे कहीं इक्वेटर पे होंगे स्टिल ऐसे आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये इन्होंने बोला, ठीक है। अर्थ के बारे में ऐसे समझाया। तो इन्होंने बोला कि मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स each other with a force which is called gravitational force। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। gravitational, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे देखो कैसे होगा। सपोज there are two masses, m1 and m2, दो masses हैं। तो what will happen, the both masses will attract each other, है ना, दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस फोर्स से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। दिस इज m1, दिस इज m2। अच्छा एक चीज याद रखना, इन ग्रेविटेशन देयर विल बी नो रिपल्शन, है ना। ग्रेविटेशन में क्या होता है, इन ग्रेविटेशन देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन, मासेस नेवर रिपल ईच अदर, है ना, कभी भी रिपल नहीं करेंगे। सपोज इसके बीच में जो है जो डिस्टेंस है दैट इज r, डिस्टेंस इज r। so force on 1 because of 2 and force on 2 because of 1। basically
एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के वैसे लॉ भी हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि ये बताता होगा तुम लोग को। न्यूटन के लॉ बेसिकली थोड़े थोड़े से पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े? पढ़ा है सर। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड वन इज भाई न्यूटन की मोमेंटम। इसका चैप्टर इज डिफरेंट है ना, कंप्लीट चैप्टर इन न्यूटन लॉ पे। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड वन इज लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम। एंड थर्ड वन इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, है ना? हाँ सर। एक्शन रिएक्शन का मतलब होता है whatever the force you apply on object, the object will apply the same force on you in the reverse direction. इसका मतलब है if m1 is exerting a force F21, then m2 will exert the same force, but direction will be different on m1 F12. So that means magnitude of these forces will be same. This is the sign of magnitude. Magnitude का मतलब है उनका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कितना है, ठीक है? सो मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, m1 विल बी अट्रैक्टेड राइट साइड, m2 विल बी अट्रैक्टेड लेफ्ट साइड, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। जैसे फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है तो F12 भी 10 न्यूटन होगा, F21 भी 10 न्यूटन होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको हम लोग F बोल देंगे, वी विल कॉल इट F। सो दिस F इज इक्वल्स टू m1 m2 gm1 m2 by r square। न्यूटन ने कैसे दिया था? He gave the formula that force is proportional to the multiplication of masses. Then he said that this force is proportional to 1 by r square, separation between them. Then this is the sign of proportionality. What is proportionality? Proportionality like relation to with something. Like suppose whatever the marks you get in your exam, so marks are proportional to your study. How much time you study or how smartly you study, so marks are proportional to your study time, ठीक है? अगर पढ़ रहे हो तो आएंगे मार्क्स, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे। So proportionality मतलब कि some relation with anything, ठीक है? So force is proportional to m1 m2 and force is proportional to 1 by r square. Whenever you remove any proportionality, you will take a proportionality constant. So F is equals to g m1 m2 by r square. This is the final formula given by the Newton. न्यूटन ने ये फाइनल फॉर्मूला दिया था कि जो फोर्स आता है वो इस फॉर्मूले से आता है, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 kg में रहेगा और r स्क्वायर यहाँ पे आता है, यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं, इसको नोट कर लो जल्दी से। So basically this is the formula what Newton gave, this one. This formula, na? He gave this formula. In this formula, G is universal gravitational constant. What is universal? What does it mean by universal? Universal का मतलब क्या होता है? सो मतलब वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड कांस्टेंट होगा, हम Yes. कहीं भी जाए। Whether you go to moon or you go to Mars, कहीं पे भी चले जाओगे, the value of capital G will remains the same. ठीक है? G remains the same irrespective of position. Irrespective of position. कहाँ पे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। Whether you go to Jupiter, you go to moon, कहीं पे भी जाओ, the value of G will remain the same. The value of G is कितना होता है? Any idea? किसी को भी याद है? 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon बिल्कुल kg. सेम। यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ? ये कौन है? मारा जा रहा है क्या बच्चा घर पे? बेटा मैं कह रहा हूँ अपना माइक म्यूट रखना है ना। पता चला घर पे पीछे से मारे जा रहे हो, है ना, यहाँ आवाज आ रही है, ऐसा मत करना है ना। चलो मजाक कर रहा है। G 6.67 into 10 to the power minus 11
इसका यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा हाउ टू डिराइव द यूनिट, है ना। फिजिक्स को हम इतना स्मार्टली पढ़ेंगे कि हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। जैसे कई बच्चे याद करते हैं कि न्यूटन होता है, न्यूटन पर केजी होता है या पर लेंथ स्क्वायर होता है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे आएगा, ठीक है, यहीं पे बता देंगे अभी, ठीक है। देन m1 m2 विल बी इन kg, m1 m2 किस में होगा? इट विल बी इन kg एंड r विल बी इन मीटर्स, ओके। क्लियर है? अब देखो g का यूनिट कैसे निकालेंगे? g का यूनिट ऐसे निकल जाता है, फोर्स किस में होता है? न्यूटन में होता है ना, इज इट इन न्यूटन? सही है कि नहीं? इज इट करेक्ट? यस, इट इज इन न्यूटन। Yes. सो g इनटू में, एंड मासेस किस में होंगे? दे विल बी इन kg, इन kg का स्क्वायर करेंगे बिकॉज मासेस आर m1 m2, so kg स्क्वायर, एंड लेंथ इज इन मीटर, so it will be meter square, so the unit of g will become न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हाँ या ना? सही है कि नहीं? क्लियर है? सही है। है ना। तो यूनिट का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मग द यूनिट, है ना। मग्गू मत बन जाना, ठीक है। इसको आराम से निकाल लेंगे हम लोग, बहुत आराम से, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना, इन ग्रेविटेशन there is always attraction, repulsion कभी नहीं आएगा, there will be no repulsion, ठीक है। क्लियर है? is it clear? Yes. चलो अब बताओ, अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम देखें, इफ यू टेक द प्लैनेटरी सिस्टम, सो क्या है प्लैनेट्स में? क्या है बताओ? सन है ना। सन के अबाउट क्या होता है? सन के अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, हाँ या ना। दिस इज द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ, इसको यू कैन टेक द अर्थ, है ना भाई। सन का साइज विल बी लार्जर ना, काफी बड़ा है सन का साइज, लेकिन क्या करेंगे हम? अर्थ को छोटा ले लो, ऐसा ले लो। तो जब अर्थ इज एट द फारदेस्ट पॉइंट, यहाँ पे होगा, दैट विल बी विंटर, है ना। और जब नियरेस्ट पॉइंट पे होगा, इट विल बी समर, हाँ या ना। ये तो पता ही है ना। सर समर होगा। इधर क्या होगा? यस सर। will be sun, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। दिस इज द एलिप्टिकल शेप, दिस इज नॉट सर्कुलर शेप, दिस इज एलिप्टिकल शेप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द शेप अराउंड यू विल बी एलिप्टिकल। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा उठा के नजर, सी द ट्री लीव्स का शेप कैसा होता है? अराउंड एलिप्टिकल ही होता है ना, लगभग, हाँ या ना। व्हाट इज द शेप ऑफ योर आई का शेप कैसा होता है? सिर्फ आई का, नॉट द आई बॉल। दिस इज एलिप्टिकल और नॉट? होता है कि नहीं? यस सर। सो मोस्ट ऑफ द शेप इन द यूनिवर्स आर एलिप्टिकल इन नेचर। वो हम पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द एलिप्स, देन वी विल सी व्हाई एलिप्टिकल शेप इज सो इंपॉर्टेंट, है ना। मैं वहां पे बताऊंगा, ऑल्दो यह हमारे सिलेबस में नहीं है बहुत ज्यादा, स्टिल आई विल शो यू कि एलिप्टिकल शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चलो अब ये बताओ, जितने भी प्लैनेट्स हैं इसके अराउंड, जितने भी ऐसे प्लैनेट्स बनाएंगे हम लोग ऐसे एलिप्टिकल शेप में, से सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सो दे आर बैलेंस्ड बाय विच फोर्स? बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, है ना। इन तीनों फोर्स में इट इज द वीकेस्ट वन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, बट स्टिल इतना भी वीक नहीं है। प्लैनेट्स को अगर देखें तो प्लैनेट्स को बैलेंस करके उसने रखा हुआ है ना।
प्लैनेट्स को बैलेंस करने में ग्रेविटेशनल फोर्स ही ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ अवर सोलर सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? यस सर। चलो नोट करो। यस सर। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। कोई ऑर्बिट कट नहीं करती है दूसरे को, कुछ कुछ करती हैं सम ऑर्बिट, लेकिन वो हमारे इसका पार्ट हो जाएगा, ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा, वो हमारे सिलेबस के बाहर है। ठीक है, इसे नोट कर लो, जब हो जाए तो बता देना। We can write two properties. Attractive force, it is attractive force, and the second one is it is long range force because it acts between the planets ना, तो उसको long range बोल सकते हैं कि नहीं? We can call it a long range force. हाँ या ना? बोलो। Although it is the weakest force in the nature, force in nature among all other fundamental forces, among all other fundamental forces, but still it is large enough to balance the planetary system and another part of the universe. Gravitational force उसके लिए जरूरी है। इंटरस्टेलर देखी किसी ने? इंटरस्टेलर देखिए, इंटरस्टेलर मूवी देखी है? नहीं सर कौन सी मूवी? इंटरस्टेलर। सर कौन सी? इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर देखिए? नहीं सर। तो किसी ने भी नहीं देखी तुम में से? नहीं सर। अरे वाह, सर पता है पर देखी नहीं है। चलो छोड़ो, ठीक है, कभी देखना अगर फ्री टाइम हो तो। ठीक है, उसमें पूरा दिखाया गया है टाइम ट्रेवल के बारे में, स्पेस टाइम क्या होता है ना? तो साइंस फिक्शन है ना? एक्चुअल में वो थ्योरी पेपर पे बेस्ड होता है। नोलन की कोई भी मूवी जो होती है वो वैसी नहीं होती, साउथ इंडियन मूवीज की तरह नहीं होती है ना? बहुत ही साइंटिफिक मूवी बनती है उसकी, बहुत ही अच्छी मूवीज बनाते हैं वो। खैर चलो, कभी अगर देखना तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जरूर देखना, है ना? कोई अच्छा इंसेप्शन देखी है? इंसेप्शन अगर ऐसे रखेंगे, अगर पोल ऐसे होगा, देन नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट साउथ पोल, अट्रैक्ट कर लेगा ना, अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ। दिस इज अट्रैक्शन, attraction, and if you place the pole similar poles, there will be repulsion. ये तो बचपन से फील किया होगा ना? हाँ, repulsion. ठीक है, so this is the magnetic force. Magnetic force is very important. क्यों important है उसका तो हम लोग देखेंगे जब लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। बट नेविगेशन जो था that was only possible because of the magnetic force present in the earth. अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, पता है कि नहीं पता है? If you place the compass को रखोगे, it always point towards the north. मालूम है? Yes sir. Yes sir. Whenever you take Yes, the sir. compass always point towards the north. तो पहले से ही जो है भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी जिसको आप वर्शिप करते हो, है ना, दैट द अल्टीमेट पावर, जिसने भी क्रिएशन किया है यूनिवर्स का, उसने इस तरीके से क्रिएट किया है दैट अर्थ विल बी हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, और यूजिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड यू कैन नेविगेट थ्रू आउट द अर्थ, है ना? हमारा जो भी जीपीएस वर्क करता है दैट वर्क्स बेसिकली, जो सबसे पुराना होता था, है ना, नेविगेशन, अभी का नहीं बता रहे हैं, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल बी यूटिलाइज। ठीक है, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, खैर हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे, हमें बस इतना याद रखना है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है कि नहीं? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। अदर देन दैट एक और फॉर्मूला आता है जो आपको भी याद नहीं हो पाएगा। व्हेनेवर चार्ज, कोई भी अगर एक चार्ज जो होता है, अगर कुछ v वेलोसिटी से चलता है या v स्पीड से चलता है इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड b होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसा आप ना कहो कि सर आपने बताया नहीं, ऐसे तो हमने बुक में देख लिया। बुक में से फॉर्मूला होगा, देयर विल बी अ फॉर्मूला कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी
QVB, लेकिन इस फॉर्मूले को आप पढ़ोगे 12th में. What is Q? Q is charge, V is speed and B is magnetic field. इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा. ठीक है, 12th में जैसे आओगे यू विल स्टडी दिस फॉर्मूला इन डिटेल. क्लियर है? क्लियर? नाउ वी विल सर स्टडी V क्या है? हाँ बेटा, सर V किसके लिए स्टैंड करता है? V is speed. सर V स्पीड. And B is Okay. magnetic field. B is magnetic field. ये लिखा है ना मैंने. ओके सर. ठीक है. तो whenever a charge feels a magnetic field, it will also feel a force which will be given by F is equals to QVB. इसके बारे में you will study in 12th. ठीक है. Now we will come to the actual force, that is the electric force. ठीक है. The parent force. इलेक्ट्रिक फोर्स को फील किया है कभी? जरूर किया होगा. झटका लगा है करंट का? इलेक्ट्रिक फोर्स, करंट का झटका लगा होगा, सबको लगा होगा, कभी ना कभी थोड़ा सा लगा होगा. लगा है कि नहीं लगा है? यस सर. है ना? करंट का झटका कैसा होता है? तेज होता है, हल्का होता है? ऐसा तो होता नहीं करंट का झटका लगते लगते तुम बात कर रहे हो, अरे झटका लग रहा है, कोई बात नहीं, बात करते रहो. क्या होता है? बॉडी परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन देती है ना, है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सा करंट के झटके को डिस्क्राइब करोगे? कोई तुम में से कोई डिस्क्राइब करना चाहेगा कि करंट का झटका लगता है तो कैसा फील होता है? कोई बताएगा मुझे कैसा फील होता है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग वो बता पाते हो कि नहीं, जो मैं जानना चाह रहा हूँ. बताओ, करंट का झटका जब तुम्हें लगा था तो तुम्हें कैसा फील हुआ था? वाइब्रेशन फील हुए थे उसके साथ? हाँ सर. फील होता है ना, वाइब्रेशन, झटके लगते हैं ना? हाँ या ना? हाँ सर. यस सर. हाँ सर. ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल हाथ ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा फील होता है ना, ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं? सर हाथ कैसे ऑसिलेट करेगा? अरे हाथ ऑसिलेट नहीं करता है, ऐसा लगता है कि वाइब्रेट कर रहा है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ. झटके लगते हैं ना उसमें, हाँ वाइब्रेट करता है. वाइब्रेशन. दैट ऑसिलेशन इज वाइब्रेशन ना, वाइब्रेशन इज बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन. तो ऐसा लगता है ना कि बहुत तेज जो है हाथ वाइब्रेट कर रहा है, मतलब बहुत ही इंटेंस होता है वो, है ना? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना. ठीक है, अब तुम्हारे ब्रेन की थोड़ी सी तुम्हें एफिशिएंसी बता दें क्या होती है. ये होता है वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ जो इंडिया में आता है. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. कितनी होती है? 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज का मतलब होता है टाइम पीरियड कितना हो गया? द टाइम पीरियड इज 1/50. सो दैट मीन एक वेव का टाइम कितना हो गया? इट विल बी सॉरी 0.02 सेकेंड. Isn't it? सही है कि नहीं? 1/50 is 0.02 सेकेंड ना? करके देख लेना, आ जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड इज 0.02 सेकेंड. अब इसके 1/4 का कितना होगा? दिस टाइम विल बी 0.005 सेकेंड. समझे? अब वो झटके इसी की लगते हैं कि वोल्टेज विल इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज. पहले प्लस में जाएगा फिर माइनस में जाएगा. तो ये प्लस में माइनस में जो जाता है ना, ऊपर नीचे होता है, ये आपको झटके का फील देता है. समझे? तो आपका बॉडी क्या करता है, वो पहले 2-4 झटके लेने के बाद जो है वेव को पूरा देखता है, वेव का फ्रीक्वेंसी, इट चेक्स द वेव फ्रीक्वेंसी. फिर वो देखता है यहाँ पे तो आप नहीं बच पाओगे. फिर जैसे ही यहाँ पे आता है, वोल्टेज 0 भी होता है एक टाइम पे, वैसे ही बॉडी विल गिव यू अ झटका. वो झटका करंट का नहीं होता है, वो झटका आपकी बॉडी, आपका ब्रेन देता है. ब्रेन नहीं देता है, स्पाइनल कॉर्ड विल गिव यू द रिफ्लेक्स एक्शन. ये तो पढ़ा ही होगा ना आप लोगों ने. रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न बाय स्पाइनल कॉर्ड. वो ब्रेन को उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है ना? सर. हाँ सर आपका यहाँ पे नीचे 0.005 कहाँ से आया? बेटा, दिस इज द 1/4 ना. दिस इज टोटल टी, दिस इज टोटल टी. अब इसको 4 टुकड़ों में कर दें, 1 2 3 4, है ना? ओके. So 0.02 divided by 4. So this portion will be 0.05 second. Okay? ये सिलेबस का नहीं है, मैं पहले समझा रहा हूँ, मैं अब बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या होता है. ठीक है, तुमको शुरू में लगेगा मैं आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ. ठीक है, तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा कि अरे सर पैकेज में तो ये सब है नहीं, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, है ना?
लेकिन बेटा यहीं से आप कनेक्ट हो पाओगे फिजिक्स से, ठीक है। अदर देन बुकिश वे में पढ़ने लग जाओगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी समझाना, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो डेली लाइफ में देखते हो उसको इन्वॉल्व करोगे जब फिजिक्स में, तब फिजिक्स को पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब तुम्हें मज़ा आएगा ना तो एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। खैर, इसका मतलब है हाई वोल्टेज से ये जो हाई वाला पोर्शन है यहाँ से जीरो आने में इट विल टेक 0.05 सेकेंड, 0.005 सेकेंड। तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा, ये तुरंत चेक करता है कि व्हेन इट विल कम डाउन टू जीरो, और तुरंत बॉडी को झटका देता है, समझ रहे हो। इसका मतलब है ब्रेन का कैलकुलेशन गोज टू 0.005 सेकेंड, समझ रहे हो। ब्रेन इस लेवल पे काम करता है। इसका मतलब है आप भले बेवकूफ हो, आप कह रहे हो कि नहीं सर मेरा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन ब्रेन जब आपको इस झटके से बचा सकता है, इट कैन परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑफ 0.005 सेकेंड। प्रॉपर ब्रेन जो है ना वेव बनाता है और चेक करता है, अच्छा ये अल्टरनेटिंग वेव है, यहाँ पे जब जीरो पे आएगा तो मुझे एकदम झटका देना है ना। तो जब वो इस लेवल पे कैलकुलेशन कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं, समझे कि नहीं, समझ में आया। ठीक है। यस सर। तो ब्रेन की बेटा एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इस लेवल पे। अगर ब्रेन कैलकुलेशन कर सकता है तो जो तुम पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं उसके सामने, है ना। हाँ, एक चीज़ मत रखना, जब भी तुम डरोगे है ना तो ब्रेन में ब्लॉकेड क्रिएट होता है। डरने के साथ क्या होता है, ब्रेन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इट विल टिप, है ना, बिल्कुल डिप कर जाएगी, ठीक है। खैर, इतना स्लाइड में जो जो रिलेवेंट है ये तो नोट ही कर लो, ये भी नोट कर लो, पूरा स्लाइड नोट कर लो। नाउ वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? इट एक्ट्स बिकॉज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ने से पहले वी हैव टू स्टडी व्हाट इज चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स which acts between the, ये समझ जाओगे BW between होता है, ये पूरा लिखें, between the charges between the charges। charges basically कैसे होते हैं, दो, there are two type of charges। first is plus charge, positive charge, इसको क्या बोलते हैं, positive charge। the second one is negative charge। क्या होता है, negative charge। okay, what happens, like charges repel each other, plus plus will always repel each other, minus minus will always repel each other। so plus plus repulsion, they will repel each other, repulsion, minus minus they will repel each other, again repulsion। only plus and minus charge will attract each other। if there is plus and minus charge they will attract each other। if there is plus plus charge they will throw each other। if there is plus and minus then only in that case there will be some attraction, plus and minus, there will be some force of attraction। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। प्लस प्लस चार्ज रिपल्शन, माइनस माइनस चार्ज रिपल्शन, ओनली प्लस माइनस चार्ज विल बी अट्रैक्शन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट इज कूलम। क्या होता है, कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। जस्ट लाइक न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, in the same way everything will be having some unit, so unit of charge will be coulomb। ठीक है, क्यों कूलम है? because coulomb gave everything about the charge, whatever the force, whatever the formula of force we will be having, this is given by the coulomb's law। ठीक है, कूलम का लॉ कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, व्हाट इज कूलम्स लॉ? इट इज बिल्कुल सिमिलर, पूरा का पूरा डिक्टो, इट इज सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आएगा, if there is some charge, suppose we are taking Q1 and Q2, both are, क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है या प्लस माइनस लेना है, कैसा लेना है? प्लस प्लस लेता है, प्लस माइनस नहीं प्लस प्लस लेते हैं ना, प्लस प्लस, so that there will be repulsion, है ना, repulsion आएगा। the force on one because of 2, the force on 2 because of 1,
the magnitude of force will be same, only the direction will be different. Mod is magnitude. What is mod? Mod का मतलब मैं बता देता हूँ. Suppose if you take mod of 3, it will be 3, and if you take mod of -3, it will also be 3. mod का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्लस के साइन के साथ मैग्नीट्यूड देना. इसको we will call F. तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है कि दिस F force is equals to, is proportional to multiplication of charges, and it is inversely proportional to 1 by r square. बिल्कुल सेम है, just like gravitation. And when you remove this proportionality, you will get a constant that is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This formula is very much similar to the force of gravity. हाँ या ना? बिल्कुल सेम है. सर हाँ सर आप रिपीट करोगे? आपने क्या समझा नहीं सर. बेटा, अगर if there is two charges q1 q2, we are placing the two charges, both are positive charges, then q1 will apply F21 on q2. देखो q1 क्या करेगा? q2 पे फोर्स लगाएगा रिपल्शन का राइट साइड में. हाँ या ना? सर व्हाट? q1 will apply a force of repulsion on q2. देखो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे. हाँ सर. So q1 will apply a force of repulsion F21 force on 2 because of 1 towards the right. Yes. Then Yes, q2 sir. will apply a force of repulsion towards left F12 Yes, force sir. on 1 because of 2. Okay, Yes, both sir. will be having the same magnitude F, and this F force is governed by Coulomb's law. This is called Coulomb's law. Just like Newton's law of gravitation, there is Coulomb's law which says what is the force between the charges because of electric attraction and repulsion. ठीक है? So this Okay, force sir. is equals to, this force is proportional to multiplication of charges. It is inversely proportional to r square, and when you remove this proportionality constant, F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. 1 by 4 pi epsilon naught is, it is a constant. ये constant होता है. क्या होता है? Sir, this is constant for what? कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है. अगले पेज में मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, इसको नोट कर लो, मैं अगले पेज पे बताऊंगा इसे. ठीक है? सर ये 1/r square का है क्या? 1/4 pi. What is this? What is known as? 1 by 4 pi epsilon naught. दिस इज अ कांस्टेंट बेटा. 1/4 pi epsilon naught. इसको क्या बोलते हैं वो भी आगे नोट करा देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है. ठीक है? या एक काम करो, रुको एक मिनट, इसको उठा लेते हैं यहाँ से. पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, अगले पेज पे ही आ जाता है ना? Yes sir. The formula is F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This is much similar to the gravitation. In gravitation the formula was G m1 m2 by r square. R square. Just like you are taking the masses here, we are taking the charges q1 q2. R is same. Just like you are taking the G, it is 1 by 4 pi epsilon naught. G का वैल्यू कितना था? G was 6.67. 6.67 into 10 raised to minus In 11. the same way, 1 by 4 pi epsilon naught is having a value 9 into 10 to the power 9. और कुछ नहीं, इतना ही होता है. 9 into 10 to the power 9 इसका वैल्यू होता है. ठीक है? इस टर्म को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट. क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट. इसको बोलेंगे क्या? Epsilon naught. परमिटिविटी. इसको बोलते हैं परमिटिविटी. Permittivity. परमिटिविटी ऑफ स्पेस. लेकिन यू विल स्टडी दिस टर्म इन 12th. ये भी आपका 12th का है, ये 12th का है, ये 11th का है. यू विल स्टडी इन 11th, ग्रेविटेशन 11th में, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन 12th क्लास. ठीक है? क्लियर है? Yes sir. होल Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशंस आर टोटली पूरी तरीके से सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है. अगर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आता है, सीधे 1 by 4 pi epsilon naught को G से रिप्लेस कर दो, Q1 Q2 को M1 M2 से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट द सेम फॉर्मूला. दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस इज देयर, ओनली वन डिफरेंस इज देयर. बताओ क्या?
ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, F is equals to unit 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and force of gravity G M1 M2 by R square, both are same. Like जैसे यहाँ पे चार्ज है, there will be mass, R is R, है ना, no change. जैसे यहाँ पे 1 by 4 pi epsilon naught है, there is G. Only one difference is there. क्या difference है वो बताओ? so units का difference है नहीं, SI उससे वो difference नहीं माना जाता है, वो कुछ difference नहीं होता है. Units क्या होता है? Units, पहली बात तो force तो न्यूटन में ही रहेगा. yeah So unit will be same. The difference is in gravitation there is only attraction. There is only attraction. हाँ या ना? No, sir, in this attraction and repulsion both is there. And in electrostatic there is attraction And repulsion. and repulsion both. यही फर्क है, और कोई भी difference is not there. Electrostatic force and gravitational force are only having only one difference. In electrostatic there will be attraction as well as repulsion, but in gravitation there will be only attraction. समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? समझिए? तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है. देखो ये याद कर, अभी मैं ये भी नहीं बोलता कि तुम्हें एक बार में फॉर्मूला याद हो जाए, है ना, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, कोरिलेट विद द ग्रेविटेशनल फोर्स और वहां से याद हो जाता है ना धीरे धीरे. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेरी मच सिमिलर. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ, एंड इन ग्रेविटेशन देयर इज ओनली अट्रैक्शन. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. हाँ, एक फर्क आएगा. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज वीक. बट So magnetic force is very strong and gravitational force is very weak. एक मिनट बेटा. Gravitational, basically we will talk about the electrostatic force and we will talk about the gravitational force, है ना. मैग्नेटिक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही बना है, तो whatever the property electric force will be having, the same property will be having by the sorry, whatever the property. So sir, electromagnetic force is the strong force, Yeah, very and strong. And the gravitational strongest force, and no, gravitational is weakest. No. Electrostatic force is strong, but it is not the strongest force. The strongest force is the nuclear force. Okay. Okay. Okay, sir. But both are long range force. Both are long range force. Okay, sir. Long range. Both are long range. ठीक है? so Actually, long range force long range that mean which acts between the very large distance. अगर चार्जेस के बीच में there is very much distance भी बहुत ज्यादा है, किलोमीटर्स में है, लाख किलोमीटर, तब भी this force will apply. Okay? प्लैनेट्स के बीच में देयर इज वेरी मच सेपरेशन ना, बहुत ज्यादा है ना. yes. इसीलिए इसको लॉन्ग रेंज बोलते हैं. लॉन्ग रेंज का मतलब है उसका रेंज कहां तक है. ठीक है, तो इसका भी रेंज ज्यादा है. देखो दिस इज द ऑर्डर. सबसे स्ट्रांग होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट वन इन द यूनिवर्स. स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग कुछ भी नहीं होता है. उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज द ऑर्डर. फर्स्ट वन इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड द लास्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो व्हिच फोर्स इज स्ट्रांगेस्ट? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. एंड व्हिच फोर्स इज Nuclear and which force is weakest? gravitation. Gravitational force. ठीक है, तो this will be the order. ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा. यहां से इसके बाद we will take the nuclear force. In next lecture we will cover the first, पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर will be completed in which we will study the nuclear force and about the conservative law. ठीक है, तो आई होप जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है सब समझ में आया अच्छे से. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंजॉय करके पढ़ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है.
ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को आप अपने मन से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो पैकेज से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां पर रिस्ट्रिक्शन होगा आई विल टेल यू कि क्या नहीं पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर तो एंजॉय करने के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, पहला चैप्टर सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए, आप अच्छे से फिजिक्स को एंजॉय करो, ठीक है। तो आप इसको जितना पढ़ना चाहो पैकेज से कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन आएंगे आपकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप कि सब समझ में आया होगा सबको अच्छे से, है ना? यस सर। चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं फाइल दे रहा हूँ, फाइल लेके जाना है। L2 अच्छा एक और चीज है, ड्यूरिंग लेक्चर जो आप चैट में लिखते हो दैट इज नॉट विजिबल टू मी। जैसे तनिषा रोट सर विच इज द युक्ति रोट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स देन, तो ये सब मुझे अब दिख रहा है, पता है। तनिषा ने लिखा था सर न्यूक्लियर फोर्स व्हाट नो न्यूक्लियर आल्सो हैज टू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक, है ना। तो ये सब मुझे अब दिख रहा है। तो ड्यूरिंग लेक्चर मुझे स्क्रीन ये दिखती नहीं है ना। तो ड्यूरिंग लेक्चर आपको बोलना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा सर जो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा होता है। ओके सर। ठीक है, सो जस्ट चेक कि यू रिसीव द L2 लेक्चर 2 फिजिकल वर्ड रिसीव्ड। यस सर। So this is our lecture, whatever we have covered. ये ऐसा दिख रहा होगा PDF में, दिखा देता हूँ मैं जरा। इसका PDF बन जाता है इस तरीके से, है ना। So I think that is readable ना, अच्छा खासा readable है। यस सर। हाँ सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, साफ सुथरा दिख रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा बाकी सब्जेक्ट में आपको विच सॉफ्टवेयर दे यूज, आपका काय का क्लास हो चुका है अभी तक? सर सारे क्लासेस इसी पे ही होते हैं। अच्छा सारे क्लासेस इसी पे ही होते हैं जो हम लोग नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का भी जो व्हाइट बोर्ड ऐप है उस पर केमिस्ट्री का शायद है मेरे ख्याल से। तो तुम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो किस सब्जेक्ट का ठीक रहता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कौन सा ठीक लगता है पढ़ने के हिसाब से? मतलब ऐसा नहीं कि मेरी तारीफ करनी है किसी की बुराई करनी है, इन तीनों में तुम्हें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसका लगा है? सर मेरा तो फर्स्ट लेक्चर है, सो मैं तो बता नहीं सकती, आप अच्छा, दूसरे से पूछो। बाकी बच्चे जो सर वो वाइट रूल पे जिस पे क्लियरली दिखता है क्या लिखा है, वाइट सर, कलर ये का बोर्ड जो पे भी visible है। वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वाला अच्छा फील होता है। एक रूल्ड पेज की तरह टेम्पलेट है, जो तो कैमरा स्लाइड यूज पर कर लिख यूज सकते हैं, कर नोट अच्छा के रूल पेज पेज की कॉपी तरह। वाला फील आता है ना? हाँ यस। चलो ठीक सर है, शायद से वो वन नोट एप्लीकेशन है। वन नोट ही होगा, पहले वन नोट ही यूज करता था मैं। तुम ये बता रहे होगे, मुझे लग रहा है ये बता रहे होगे, देखो शायद ऐसा बता रहे होगे। यस। यस सर। ऐसा कुछ, या एक मिनट रुको, नहीं तो बस रूट रहता है वो। अरे वन रूल, नोट ही था, वन नोट ही था, सही बात। अरे ये बोल रहे हो ना होता था। दिस वन ना, एक मिनट रुको, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे रूल लाइंस होती Yes. हैं हाँ ये? सर। यस सर, हाँ यस अच्छा। सर, यस ऐसे पहले लेते थे, बहुत पहले, है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे। यस सर। यस। अब इस पे नहीं लेते हैं ये मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील हो जाएगा कि जिस पे भी पढ़ रहे हो ना फिजिक्स, यू विल फील कि ये ज्यादा कंफर्टेबल है। उसका रीजन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हमारे, ज्यादा हाँ देखो कुछ रीजन होगा कि मैं पहले मैं वन नोट पे लेता था, लेकिन अब मैं वन नोट पे नहीं लेता हूँ। देखो ये सब है ना, बच्चों को पढ़ाया हुआ है ना पूरा, है ना, ऐसा रूल लाइन पे है कि नहीं, इस तरीके से। यस। लेकिन अब क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन था बच्चों का, बच्चों ने फीडबैक दिया था, है ना, हर तरीके से ट्राई किया, ग्रीन बोर्ड, रूल लाइन, सब कुछ, लेकिन फाइनली जो है ये बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है। और यू विल रियलाइज कि ज़्यादा कंफर्टेबल होता ही है। क्यों होता है, इसका रीज़न बस ये है क्योंकि बचपन से आपकी आदत पड़ी हुई है, बोर्ड पे मैम लिखती थी, पूरा लिखती थी, फिर मिटाती थी, है ना, तो 1 by 1 बोर्ड की आदत पड़ी हुई है ऐसी, है ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना। चलो खैर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइल रिसीव हो गया सबको? यस। वी यस। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
बाय Thank you. Bye, sir. Thank you.